So this is the final part of physics chapter laws of motion. Uh, and this I think can be a little complicated part if you are not paying attention, or if your concepts till now are not clear, then this part could be a problem for you. So I recommend that you watch this part only after completing all your homework, clearing all your doubts, because this part will give you some new insights about the applications of Newton's laws of motion. Okay, the name of this part is conservation of linear momentum. Conservation principle from the core of physics form the core of physics and are easy tools in problem solving. What do you mean by conservation? Conservation means conserved means constant. So conservation of linear momentum means linear momentum remains constant. The property of linear momentum being constant always throughout in any motion is known as conservation of linear momentum, right? So this is a principle. This is a principle which we are going to study in physics, that is conservation of linear momentum. So let's study this principle. Let's assume that an external force acting on a body produces change in momentum in that body, that is rate of change of momentum. So external force is equal to change in momentum per unit time. We have studied that and we have derived that from Newton's second law of motion. So what do you mean by that? It means that when force into time, the product of force into time is zero, then the change in momentum is also zero. That means when change in momentum is zero, that means final momentum and initial momentum are equal, right? That is, momentum is not changing. If momentum is not changing, that means force is not there, right? When force is not there, that means force is zero, right? Force into time will also be zero. Time cannot become zero. So force multiplied by time can be zero only when the external force is zero. Just imagine force is not applied on the body. Will its momentum change? Will its product of mass and velocity change? No. So what will be the difference between initial and final momentum? There is no initial and final momentum. There is only one momentum. So initial momentum and final momentum are same. That means their difference is zero. And this happens when external force is zero. So the statement of conservation of linear momentum says that when external force acting on a system is zero, the total linear momentum of the system remains constant. जब किसी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. अब यहाँ पे सिस्टम क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे. व्हाट इज अ सिस्टम? System is a body or set of bodies under consideration. The choice of system depends on your thinking. You may take each body as a separate system or combination of bodies as one system for applying conservation of linear momentum. Generally speaking, it is easy to solve a problem if we take two bodies as a system compared to when each body is taken as a separate system. तो हम जो अभी problem solve करने वाले हैं उसमें दो bodies होगी. ठीक है, ये दोनों बॉडीज को कंबाइन एज अ सिस्टम हम लोग कंसिडर करें, और ये दोनों बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो कैसे कांस्टेंट रहता है, ये हमें प्रूव करना है यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बट बिफोर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम you have to take care of something. You have to ensure that the external force acting on the system is zero. एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम मतलब ये जो दोनों बॉडीज है सिस्टम में, सपोज एक सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें दो बॉडीज है, एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी. तो ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू बॉडीज. ठीक है. अच्छा, बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है.
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ ये सिस्टम के अंदर जो इन्वॉल्व दोनों बॉडीज है वही एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, सो यू मस्ट take care, you must ensure before applying conservation of linear momentum that external force acting on the system is zero. There is no third party. अगर हमारी सिस्टम में सिर्फ दो बॉडीज है, सो दोनों बॉडीज के फोर्सेस को ही हमें साथ में लेना है। एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा बॉडी पहले बॉडी के ऊपर, जस्ट लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन जैसा। A system on which no net external force is zero is called an isolated system. तो ऐसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम जो भी एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे उसमें आइसोलेटेड सिस्टम ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन नॉट बी अप्लाइड। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स हमें अनबैलेंस फोर्सेस, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस को हमें इन्वॉल्व नहीं करना है इफ यू वांट टू अप्लाई दिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी भी कुछ बच्चे शायद थोड़े कंफ्यूज होंगे कि ये सारी नई नई चीजें आप बता रहे हो सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड with a proper example. If you want to understand any concept of physics, you cannot just read theory. तुम्हें इसको रियल लाइफ में अप्लाई करके देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें थियरी में पहले ही तुम्हें बताएंगे कि फोर्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो बता दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें, चलो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, मतलब ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब ये सिस्टम पे कोई थर्ड पार्टी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये सिस्टम में जो दो बॉडीज है वही एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उनका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इससे कुछ समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं। कोलिजन, कोलिजन का एग्जांपल लेते हैं। कोलिजन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन? कोलिजन मीन्स when two bodies collide with each other. When two bodies collide with each other. Collide means जब टकराते हैं एक दूसरे से। जब ये दो बॉडीज एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या मैं किसी तीसरी बॉडी की बात कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। मतलब वी आर इन दिस एग्जाम्पल कंसिडरिंग अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। ये तुम्हारी सिस्टम हो गई। ठीक है, ये दो बॉडीज जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा? बॉडी ए विल एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडी बी एंड बॉडी बी विल एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडी ए। तीसरा कोई फोर्स है? नहीं है। क्लियर? ठीक है, जब कोलिजन कंसिडर करते हो दो बॉडीज के बीच में हेड ऑन कोलिजन, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का ही केस हो जाता है अपने आप। तो यहां पे हम लोग लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हेड ऑन कोलिजन है ये। सपोज टू बॉल्स ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो, बॉल ए is moving in the forward direction, in the right side direction. Ball B is also moving in the forward direction. ठीक है, along the same line on a frictionless horizontal surface. Frictionless horizontal surface होती नहीं है, but this is hypothetical. Hypothetical मतलब हमने ऐसा assume किया है for the purpose of you can say clarity on of derivation. We have assumed that ये सरफेस फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है। मतलब यहाँ पे इन दोनों बॉडीज पे कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ना तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो तब एक्ट करता है जब बॉडी वर्टिकल ट्रेवल करता है ना? तो यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है। अच्छा, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या है? यू ए एंड यू बी। व्हाट इज यू ए? Initial velocity of body A. What is UB? Initial velocity of body B. And let UA be greater than UB. ठीक है, UA is greater than UB। मतलब क्या होगा कि पीछे वाला जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वो आगे आके बॉडी बी से टकराएगा। अच्छा, व्हाट इज MA? मास ऑफ बॉडी A. व्हाट इज MB? मास ऑफ बॉडी B. So what is the total initial momentum of the two balls? Now, okay, let me write here only.
total initial momentum of two balls. Can you tell me what is the initial momentum of ball A? Momentum is mass into velocity. Mass of ball A is ma into velocity is ua. ठीक है, प्लस momentum of ball B mb into ub. ठीक है, so this is nothing but the total initial momentum of the ball before they collided. MAUA प्लस MBUB. कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल नहीं, सिंपल है ये तो. ठीक है, अच्छा, सिंस UA इज ग्रेटर देन UB, क्योंकि पीछे वाले बॉल की वेलोसिटी आगे वाले बॉल से ज्यादा है, तो क्या होगा? द बॉल्स विल कोलाइड. पीछे वाला बॉल आके आगे वाले बॉल को टक्कर मारेगा, राइट? कोलाइड करेगा उसके साथ. एट द टाइम ऑफ कोलिजन FAB is force exerted on A due to B. FAB क्या होगा? FAB is the force exerted on A due to B. And FBA क्या होगा? Force exerted on B due to A. According to Newton's third law of motion, जो अब भी हमने पढ़ा इसके पहले वाले पार्ट में, these two forces are equal and opposite. One is action force and one is reaction force. ठीक है, so they are equal in magnitude but opposite in direction, so FAB is negative of FBA. Now after collision let the final velocity, चलो कोलाइड तो हो गए, अब क्या होगा? अब बॉल ए और बॉल बी की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी VA और VB, और उनके मासेस तो उतने ही रहेंगे MA और MB. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी देयर फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम इज MAVA plus MBVB. This is nothing but the final momentum of the two balls after collision. ठीक है, ये रहा. Now the force on A, on body A due to B is FAB, which is responsible for the rate of change of linear momentum of A. जो फोर्स A पे एक्सर्ट कर रहा है, एक्सर्ट हो रहा है B के थ्रू, B बॉडी A पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो बॉडी A का मोमेंटम चेंज करेगा. ठीक है, सो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू rate of change of momentum. What is rate of change of momentum? Change in momentum upon time. What is change in momentum? Final momentum of body A minus initial momentum of body A upon time. Final momentum of body A क्या है? Body A का final momentum है MAVA. Initial momentum of body A क्या है? MAUA. ठीक है, तो MAUA को सब्ट्रैक्ट किया MAVA में से और अपॉन टाइम कर दिया. टाइम इज द टाइम इंटरवल फॉर कोलिजन. बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए दोनों बॉडीज कोलाइड करेगी, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेगी. दैट इज द टाइम हियर इन डिनोमिनेटर. ठीक है, सिमिलरली द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए will change the momentum, will be responsible for the rate of change of momentum of B, body B. And what is the rate of change of momentum of body B? देखो यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे उन्होंने जो लिखा है वो गलत है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ. ठीक है, ये गलत है. यहाँ पे आएगा MBVB फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B माइनस MBUB इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी B अपॉन टाइम. ठीक है, अच्छा, वी नो दैट FAB इज इक्वल टू FBA. दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट. मतलब MAVA माइनस MAUA अपॉन टाइम इज नेगेटिव ऑफ MBVB माइनस MBUB अपॉन टाइम. दोनों जगह से टाइम कैंसिल हो जाएगा, टाइम सीधा कट हो जाएगा. अब क्या होगा? MAVA माइनस MAUA इज इक्वल टू माइनस MBVB. देखो आगे माइनस की साइन है ना, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो सब माइनस हो जाएगा. माइनस MBVB प्लस ये माइनस माइनस प्लस MBUB. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अच्छा, इसमें अभी एक चेंज किया है वो लोगों ने. MAVA के साथ ये MBVB को
इधर ये साइड मूव किया है तो ये माइनस साइन प्लस बन जाता है। तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी क्या है? दिस इज द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज ऑफ द सिस्टम। और ये एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये माइनस एम ए यू ए को ये साइड शिफ्ट कर दिया है। सो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी क्या है? टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो ये प्रूव होता है कि द total final momentum of the system remains equal to total initial momentum of the system. That means the total momentum of an isolated system of these two bodies which are colliding with each other remains constant, does not change, remains conserved. So law of conservation of momentum is verified over here. एक चीज यहां पे कॉशन ये लोग ने बताई है, प्लीज ध्यान रखना। Momentum is associated with the direction. Therefore, if we take momentum in the right direction as positive, then the momentum of the left direction should be taken as negative. मतलब right direction में जो momentum अगर positive होगा तो left direction वाला momentum negative होगा। ये कब अप्लाई करना है पता है? ये तभी अप्लाई करना है कि जब दो बॉडीज, एक छोटी बॉडी है और एक नहीं, ओके लेट मी ड्रॉ लाइक दैट, नो प्रॉब्लम, और एक बड़ी बॉडी है, ठीक है, और ये दोनों टकराते एक दूसरे से, एक आ, ये डायरेक्शन में जा रहा है और एक ये डायरेक्शन में, टकराने के बाद क्या होगा? ठीक है, हो सकता है ये जो बॉडी इस तरफ आ रहा था उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये बॉडी इधर ही रुक जाएगा, या इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये भी पीछे चला जाएगा। अगर दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब दोनों का जो मोमेंटम है वो भी ऑपोजिट हो गया, ठीक है। सो अगर राइट की डायरेक्शन में मोमेंटम को तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट की डायरेक्शन में तुम्हें उसको नेगेटिव लेना है। बट हाँ, इसका एप्लीकेशन ऐसे एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल अगर आएगा न्यूमेरिकल में तो हम देखेंगे, नहीं तो इसके बारे में ज्यादा अभी फिक्र मत करो। अच्छा, मिसकॉन्सेप्ट क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेके देख लो एक बार। Not considering the direction of vector quantities like velocity, acceleration, momentum, force is a misconcept. It is a mistake. In case of vector quantities, when motion along a straight line is taken, if right direction is taken positive, then the value of the physical quantity in left direction should be taken as negative. For vector quantities, for force, हम बोलते हैं ना रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। So that is basically when motion of the two bodies are in opposite direction, either in right direction or left direction, they should be taken as negative of each other, ठीक है। For example, let in the above example ball B move in the left direction initially, then अगर दोनों बॉल एक दूसरे के ऑपोजिट में आ रहे हैं तो बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम ए यू ए माइनस एम बी यू बी, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि बॉल बी लेफ्ट साइड में आ रहा है तो उसका मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। फिर कोलिजन होगा और आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम क्या होगा? एम बी वी बी माइनस एम ए वी ए। बॉल ए का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा और वो नेगेटिव लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस वी ए एम ए वी ए लिखेंगे हम। इसके एप्लीकेशंस देखो क्या है। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नंबर 1, द केस ऑफ रॉकेट propulsion. As we see in the figure, the initial momentum of rocket and fuel system is 0 after firing। अच्छा, बिफोर फायरिंग देखो ये रॉकेट है और रॉकेट के अंदर फ्यूल, तो बिफोर फायरिंग इनिशियल momentum of the whole system, that is rocket as well as fuel, is 0, but after firing what is happening? The momentum should still remain 0 if the earth's gravitational pull and air resistance is neglected, and that is the rocket is moving in a gravity free space. Since the momentum of exhaust is vertically downward, ये जो exhaust है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब जो गैसेस है वो नीचे की तरफ निकल रहे हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है,
तो रॉकेट का मोमेंटम अपवर्ड है मतलब पॉजिटिव है, और उतना ही मोमेंटम किसका होगा, गैसेस का होगा जो नीचे की तरफ है मतलब नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव है। तो दोनों मोमेंटम का जो सम है वो कितना रहेगा, जीरो। सो टोटल momentum remains zero even after the rocket is fired, right? We should note that here also an action reaction pair is formed. The rocket acts on the exhaust gases, that is action, and exhaust gases react on rocket, which is reaction. So rocket propulsion may be the linear total linear momentum of the system remains conserved. Recoiling of the gun, तुम सोचोगे ये तो वही सारे एग्जाम्पल है जो हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे। यस, ये वही सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वही सारे एग्जाम्पल है जिसको हम लोग वापस पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे और एक नया कॉन्सेप्ट तुम सीख रहे हो, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। Consider the figures given below. Figure 34A shows a gun with a bullet at rest. So total momentum of gun as well as bullet is zero because their initial velocity of gun as well as bullet is zero. But when bullet is fired from the gun, the total momentum is minus mv plus mv. अच्छा, ये माइनस कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी क्या है, this is the recoil momentum of the gun. recoil momentum मतलब जब गन रिकॉइल होते हैं ना तो पीछे की डायरेक्शन में होता है उसका मोमेंटम, एंड स्मॉल m इंटू स्मॉल v क्या है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज apart from bullet and gun there are no other external agents, no other external forces, therefore the total momentum must be conserved. So final momentum must be equal to initial momentum, therefore capital M into V plus small mv, that is final momentum. आई थिंक इधर माइनस कैपिटल आएगा, माइनस नहीं लिखाएगा, माइनस एम वी प्लस स्मॉल एम वी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज माइनस एम वी इज इक्वल टू स्मॉल एम वी, और v इज इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन कैपिटल M. You know what is capital V over here? The velocity with which the gun has recoiled. तो ये वाला जो फॉर्मूला है इससे तुम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकाल सकते हो। तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये जो तुम्हारा यस ये जो स्टेटमेंट है ना उसको याद रखो, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बस इसी को हर एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले एग्जांपल पे तुम अप्लाई करोगे ना, तुम्हारा आंसर निकलेगा। हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए टाइम लगेगा, अभी भी अगर तुम कुछ चीजों के साथ अटक रहे हो, हम लोग अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ और भी वीडियोस भेजूंगा तुम्हें, तो एनिमेशन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू तुम समझ सको, नए पर्सपेक्टिव तुम्हें मिल सके, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू help you clear your doubt about conservation of momentum, but you need to be patient, ठीक है। you need to have patience. अगर तुम लोग बिल्कुल ही अगर होप छोड़ दोगे, नहीं नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, ऐसे मत करना। थोड़ा सा वेट करो, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए, थोड़ा समझने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल्स करते करते भी सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज वेट, प्लीज बी पेशेंट। ओके, नेक्स्ट, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, यहाँ पे लर्निंग प्लस मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन अ रॉकेट बीइंग लॉन्च्ड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल तो है ही, उसको तो निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, अ स्पेस लॉन्च vehicle consumes over 10,000 kilograms of fuel per second. The exhaust comes out at a tremendous speed of 4,000 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ लॉन्च करते टाइम उसका 10,000 kg फ्यूल खत्म हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए, और जो एग्जॉस्ट की स्पीड है दैट इज 4,000 मीटर पर सेकेंड। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर एग्जॉस्ट की स्पीड इतनी है, एग्जॉस्ट के पास इतना मोमेंटम है, तो वो रॉकेट को कितना मोमेंटम देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए रॉकेट स्पीड से ऊपर जाता है, लॉन्च होता है। सो डोंट ट्रीट दिस फॉर्मूला, ये जो मैंने वेलोसिटी ऑफ बुलेट वाला फॉर्मूला बताया तुम्हें, वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ डिराइव किया है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। इट मे नॉट बी करेक्ट फॉर अदर सिचुएशंस। सो रिमेंबर, ओनली द बेसिस
Basic concept of conservation of linear momentum, you have to apply and use that principle wherever applicable. So we are at the beginning of numericals. Welcome to the numerical part. I was waiting for it badly. And this is luckily the last numerical part of the chapter. इसके बाद ये chapter खत्म हो जाएगा. Just imagine you are done with second chapter of physics so nicely, so many videos and so much of information, and you know everything. ठीक है, now you are ready to do assignments, now you are ready to give tests, सब कुछ हो सकता है. ठीक है, चलो सॉल्व एग्जांपल्स. फर्स्ट वाला करते हैं. अ राइफल ऑफ मास 3 kg, ठीक है, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 0.03 kg. तो यहां पे एक राइफल है और यहां पे एक बुलेट. राइफल बुलेट दो बॉडीज है हमारी सिस्टम में. इसका जो मास है इसको मैं लिखता हूं कैपिटल एम. कितना है? 3 kg. इसका मास में लिखता हूं स्मॉल एम 0.03 kg. The bullet leaves the barrel of the rifle at a velocity of 100 meter per second. Okay, so the final velocity of bullet VB is equal to 100 meter per second. What will be the initial velocity of the bullet? UB 0 meter per second. सही है. If the bullet takes 0.003 seconds to move out of the barrel, oh, the time taken by bullet is given. How much? 0.003 seconds. Calculate the force experienced by the rifle due to its recoil. Okay, force experienced by the rifle. So force experienced by the rifle हमें ढूंढना है. So force experienced by the rifle is equal to change of momentum of rifle upon time. ठीक है, लेकिन राइफल के बारे में तो हमें चेंज ऑफ मोमेंटम का कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि राइफल की वेलोसिटीज दी नहीं है हमको. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय राइफल कैसे निकालना? ठीक है, सो यहां पे तुम यूज करोगे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लिखना जरूरी है. टोटल मोमेंटम बिफोर the bullet was fired is equal to total momentum of the gun and bullet after the bullet was fired. Okay, so what is the total momentum before the bullet was fired? See, mass of the gun capital M, initial velocity of the gun 0, mass of the bullet small m, initial velocity of the bullet 0. So ये 0 होने वाला है. What is the total momentum after the bullet was fired? See, mass of the gun is capital M multiplied by mass of velocity, final velocity of the gun. We don't know the recoil velocity, so this will be VA. VA नहीं, VG लिखते हैं हम लोग, गन है ना इसकी वजह से. Okay, so M into VG plus small m, that is mass of the bullet, multiplied by VB, velocity of the bullet after it was fired. So 0 is equal to mass कितना है इसका 3 multiplied by VG plus mass है 0.03 multiplied by 100. ठीक है, so ये हो जाएगा 0 is equal to 3VG plus 3. Okay, so ये 3 वो साइड चला जाएगा and we'll get VG is equal to 3VG is equal to
-3, सो Vg, ये 3 वो साइड गया, -3 हो गया, सो Vg इज इक्वल टू -3/3 विच इज -1 मीटर पर सेकेंड. Are you surprised? Are you surprised that the final velocity of the gun is negative? You should not be surprised actually. The final velocity of the gun has to be negative because it is in opposite direction. Velocity of bullet is in right side, right direction, and velocity of the recoil velocity of the gun is in left side, so it has to be negative. ठीक है, तो ये नेगेटिव से कुछ भी गलत नहीं है, इसको नेगेटिव ही रहने दो, ऐसे ही आंसर निकालेंगे हम लोग. ठीक है, अब हमें मिल गया द फाइनल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. अब हम क्या करेंगे, वी वांटेड टू फाइंड द फोर्स exerted by the bullet on the gun, that is force on the rifle. मैं यहाँ पे R लिख रहा हूँ, यहाँ पे G लिख रहा हूँ. गन या राइफल एक ही बात है, R या G, ठीक है, डोंट वरी. अच्छा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द राइफल. चेंज इन मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, that is PF minus initial momentum, PI, PI अपॉन टाइम. ठीक है. अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. मास कितना है? 3 kg मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी -1 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है गन का? 0. अच्छा, टाइम कितना हो रहा है? 0.003 टाइम लग रहा है. अच्छा, ये कितना हो जाएगा? -3 अपॉन 0.003, दैट इज -3 अपॉन -3000 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा, 3, so that is -1000 Newton. So the force experienced by the rifle or the gun will be -1000 Newton in the opposite direction. देखो, इसलिए फोर्स भी नेगेटिव आया, क्योंकि ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट. अगर बुलेट राइट साइड में जा रही है तो उसका वेलोसिटी, फोर्स, सब कुछ पॉजिटिव है. गन लेफ्ट साइड में आ रही है रिकॉइल होके, तो उसका वेलोसिटी, उसका मोमेंटम, उसका फोर्स, उसके ऊपर जो फोर्स है वो सब नेगेटिव होगा. ठीक है. सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द राइफल ड्यू टू इट्स रिकॉइल इज -1000 न्यूटन. लेट्स चेक द आंसर. यस, इट इज करेक्ट. ठीक है, तो जो मैंने मेथड यूज की उसको ही यूज करना है तुम्हें. देखो, सबसे पहले मैंने फोर्स निकालने के लिए आई यूज्ड दिस फॉर्मूला, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ राइफल अपॉन टाइम. ठीक है, लेकिन मेरे पास मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए कुछ था ही नहीं, वेलोसिटी. सो मैंने अप्लाई किया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मैं फिर से बता रहा हूं फॉर दोज हु डिड नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट टोटल मोमेंटम बिफोर द बुलेट was fired is equal to total momentum after the bullet was fired. है ना, पूरे सिस्टम में तो दो ही चीज है, बुलेट और गन. ठीक है, तो मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. सारी वैल्यूज डाल के हमने फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन निकाला, -1 मीटर पर सेकेंड. अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है. क्या करना है? अब सीधा सा ये फॉर्मूला लगाना है, दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. बस चेंज इन मोमेंटम में तुम फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू डालो गन के लिए, सिर्फ गन के लिए. ठीक है, दोनों के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ फोर्स ऑन गन निकालना, एंड देन यू विल फाइंड इट. समझ में आया पूरा प्रोसेस? लेट्स मूव अहेड. A bullet of mass 10 grams is fired from a rifle. Okay, फिर से यहां पे लिखता हूं, बुलेट, राइफल, मास m, स्मॉल m कितना है? 10 grams, which is equal to 10 upon 1000, that is 0.01 kg, है ना. 10 upon 1000, 1 upon 100, 0.01 kg. Okay, the bullet takes 0.003 seconds to move through its barrel and leaves it with a velocity of 300 meter per second.
Okay, so the time is given for the bullet to leave its barrel, 0.003 second, and leaves it with a velocity of 300 meter per second. So final velocity of bullet is equal to 300 meter per second. What is the force exerted on the bullet by the rifle? On the bullet by the rifle. अब यहां पे तुम्हें राइफल के बारे में कुछ नहीं दिया है, नथिंग। राइफल का वेट कितना है, राइफल का सॉरी मास कितना है, राइफल का रिकॉल वेलोसिटी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब देखो, what is the force exerted on the bullet by the rifle? Force exerted on the bullet is equal to rate of change of momentum of bullet, है ना, rate of change of momentum of bullet. What is rate of change of momentum of bullet? It is change of momentum upon time. Rate of change of momentum of bullet is change of momentum upon time. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल मोमेंटम? मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट minus mass of bullet multiplied by initial velocity of the bullet, which is 0. Okay, that we will write upon time. ठीक है, mass of bullet 0.01 kg, velocity of bullet 300 seconds, minus mass of bullet 0.01 kg, initial velocity of the bullet before firing is 0, and time is how much? 0.003. ठीक है, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा। सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट इज 3 upon 0.003, that is 3 zeros upon 3, that is 1000 Newton. Now this was, I think, very much similar to this question. मास ऑफ बुलेट सिर्फ इसमें 0.03, यहाँ पे मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आई थिंक 100 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 300 मीटर पर सेकेंड, इसलिए आंसर सेम आ रहा है, बाकी कोई इसमें पीछे रीजन नहीं। ठीक है, अच्छा तो तुम एक चीज नोट कर रहे हो, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two bodies A and B of mass 2 kg and 5 kg are at rest initially. ठीक है, body A, body B, mass of body A is 2 kg, mass of body B, पहले ये लिखना बहुत जरूरी है, you must write all the given information and then move forward. Because of the forces of attraction applied by them on each other, because of the forces of attraction applied by them on each other, the body started moving. ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है और ये मूव करना शुरू कर रही है। ठीक है, the body started moving. After some time, body A is found to move towards right with a velocity of 0.5 meter per second. अच्छा, इनिशियली ये रेस्ट पे है, वो तो लिख लेते हैं यार। UA is 0 meter per second and UB is 0 meter per second. अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग। आफ्टर सम टाइम बॉडी ए इज फाउंड टू मूव टूवर्ड्स राइट, बॉडी ए राइट की तरफ जाता है
with a velocity of 0.5 meter per second, मतलब VA final velocity 0.5 meter per second, positive velocity right की तरफ जा रहा है. What is the velocity of B at that instant? अब मैं ये इमेजिन कर रहा हूं कि बॉडी ए और बॉडी बी इनिशियली एट रेस्ट है और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. अच्छा, बॉडी ए और बॉडी बी अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो बॉडी ए राइट में कैसे जा सकता है? बॉडी ए को लेफ्ट में जाना चाहिए. अगर बॉडी ए राइट में जा रहा है तो बी भी राइट में जाएगा फिर. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी एट दैट इंस्टेंस? लेट्स फाइंड इट यार, इंटरेस्टिंग है ये तो. Okay, so what do we assume over here? We can write that by the principle of conservation of momentum, by the principle of conservation of momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम बॉडी ए का कितना होगा, एम ए यू ए, प्लस इनिशियल मोमेंटम बॉडी बी का कितना होगा, एम बी यू बी, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी. करेक्ट. व्हाट इज एम ए यू ए? It is 0, 2 into 0. What is MBUB? That is also 0. What is MAUA? Sorry, MAVA. 2 into 0.5. 2 multiplied by 0.5 plus what is MBUB? MBVB, I'm sorry. So MB is 5 and VB we don't know. Okay, let's see. Let's find out. तो यहाँ पे 2 into 0.5 1 हो जाएगा. 1 will come this side, will become -1 is equal to 5 multiplied by VB. ठीक है. So this will be -1 upon 5 is equal to VB and VB comes out to be negative, that is -0.2 meter per second. जो हमारा यहाँ पे assumption था कि VB should have been पॉजिटिव, मतलब VB बॉडी बी भी राइट साइड में जाएगा, वो गलत है. आफ्टर देयर कोलिजन दे विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर. बहुत ही इट इज वेरी वियर्ड. मतलब बॉडी ए और बी की पोजीशंस के बारे में मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बॉडी ए कहाँ पे है, बॉडी बी कहाँ पे. ठीक है. सो लेट्स चेक द आंसर वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट. हो सकता है अपना डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन सही ना हो, but let's see the answer. Okay, so this is VB is 0.2 meter per second in magnitude. In magnitude, yes, because they have already put a negative sign over here. You see? Let us consider two bodies as a system. The initial momentum of the system is 0. अच्छा, तो बॉडी ए और बॉडी बी दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाए हैं. आई डोंट नो. And then when they strike each other, देखो हमारा आंसर करेक्ट है. इन मैग्नीट्यूड 0.2 मीटर पर सेकेंड है, बट देर इज सम इश्यू विद द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ही नहीं दिखा पा रहे कि इनिशियली अगर बॉडी इतने दूर है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं. टकराने के लिए तो बॉडी को पास में होना चाहिए. ठीक है. सो आई रियली वंडर के ये कैसे उन लोग ने क्वेश्चन फॉर्म किया है, बट अपना आंसर करेक्ट आया है. सो इफ यू पुट वट एवर द सिचुएशन, इफ यू पुट
the values in your formula properly, then you should get the correct answer. Next question, please. A 40 kg skater moving at 4 meter per second eastwards. Okay, तो यहां पे मैं लिखता हूं skater. Skater is moving at 4 meter per second. Initial velocity of skater is 4 meter per second. Eastwards collides head on with a, अच्छा इसका मास भी दिया है स्केटर का 40 kg. He collides head on with a 60 kg skater. एक दूसरा स्केटर है, स्केटर बी, स्केटर ए, स्केटर बी. तो यहाँ पे एस नहीं ए होना चाहिए. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटर ए कितना है? ट्रैवलिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड वेस्टवर्ड्स. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं. ये ईस्ट में जा रहा है, ये वेस्ट में, और हेड ऑन कोलिजन होता है दोनों. 3 मीटर पर सेकेंड. और इसकी वेलोसिटी इनिशियली कितना है? अच्छा, वेलोसिटी तो मिल गई. मास कितना है इसका? मास ऑफ स्केटर बी, आई एम सॉरी ये बी होना चाहिए, ये है 60 kg. If the two skaters remain in contact after collision, what is their final velocity? Whoa! Can you imagine that? ये दोनों स्केटर एक दूसरे से टकराते हैं और टकरा के एक साथ चिपक जाते हैं. ये क्या हो रहा है? स्केटिंग हो रहा है? क्या हो रहा है ये? What is happening, guys? I hope this is not what I'm thinking. ये दोनों स्केटर्स एक दूसरे के सामने टकरा के एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और फिर उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या है ये पूछा है. ब्यूटीफुल यार, लेट्स फाइंड इट. तो इसमें देखो, हमें वी ए नहीं दिया है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी. एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी थोड़ी अलग अलग होगी, वो तो एक ही होगी. सिंस skater A and B both remain in contact after collision, hence the final velocity acquired by both of them will be the same, that is VA is equal to VB is equal to X. इसको हम X मान लेते हैं. ठीक है, therefore by principle of conservation of momentum, by principle of conservation of momentum, total initial momentum, total initial momentum, correct है, is equal to total final momentum. ठीक है, ओके. अब टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी. और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या है? अभी देखो, फाइनली टकराने के बाद दोनों चिपक गए, कांटेक्ट में आ गए एक दूसरे के साथ. रिमेन इन कांटेक्ट मतलब क्या है कि उनका मास एक हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी, और इनकी वेलोसिटी भी कॉमन है, क्या है? x मल्टीप्लाइड बाय x. दैट इज द टोटल फाइनल मोमेंटम. समझ में आया? एम ए यू ए क्या होगा? 40 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस एम बी यू बी 60 मल्टीप्लाइड बाय 3.
is equal to ma plus mb, that is 40 plus 60 multiplied by x. ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 plus 180 is equal to 100 multiplied by x. So 160 plus 180 ये हो जाएगा 340, 340 करेक्ट. 100 plus 100 200 plus 60 260 plus 80 340. 340 divided by 100 is equal to x. So x कितना हो जाएगा 3.4 मीटर पर सेकेंड. और ये x पॉजिटिव आया, उनका वेलोसिटी पॉजिटिव आया. ओ, एक गलती कर दी हमने यार, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेनी थी हमको. देखा, गलती हो गई. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं. यहाँ पे सब कुछ सीख ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा. ओके ओके ओके. सो 60 इंटू -3, बिकॉज जो स्केटर बी है वो वेस्ट वर्ड जा रहा है और स्केटर ए ईस्ट वर्ड जा रहा है, तो ईस्ट को पॉजिटिव और वेस्ट को नेगेटिव अगर मान ले, दोनों में से कोई एक तो एक दूसरे का नेगेटिव होगा ही. तो 60 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -180. तो ये हो जाएगा -20. सो -20 डिवाइडेड बाय -20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x. तो x हो जाएगा -1/5 विच इज -0.2 मीटर पर सेकेंड. मतलब क्या, ये दोनों कोलाइड होने के बाद इनकी टोटल कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगी -0.2 मीटर पर सेकेंड. मतलब इट विल बी इन द डायरेक्शन वेस्टवर्ड्स. मतलब स्केटर बी जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना, उसी डायरेक्शन में दोनों चिपक के एक साथ 0.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे जाएंगे. Let's check if the answer is correct or not. -0.2 meter per second. The negative sign shows that these two will move together in the west direction after colliding. Yes, absolutely correct. Okay, कितने questions हैं? Oh, last question, last question. Congratulations, we are at the edge. Two blocks A and B of masses 2 kg and 10 kg respectively, moving in the opposite direction, collide head on. Okay. The velocity of A and B just before collision is 10 meter per second and 2 meter per second respectively. What is the final velocity of the two blocks stick if the two blocks stick after colliding? Okay. So दो blocks है, block A and block B. What is given? They are moving in opposite direction, collide head on. ठीक है. ब्लॉक ए यहां पे आ रहा है, ब्लॉक बी यहां पे आ रहा है. दोनों हेड ऑन कोलिजन करते हैं, उनका हेड ऑन कोलिजन होता है. ठीक है. सो मास ऑफ ब्लॉक ए क्या है, 2 kg. मास ऑफ ब्लॉक बी क्या है, 10 kg. द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी जस्ट बिफोर कोलिजन, that is UA 10 meter per second and UB 2 meter per second. The velocity of block A and B just before collision is 10 meter per second and 2 meter per second. What is the final velocity if the two blocks stick after colliding? Oh, अगेन ये सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा, तो फिर से वही स्टेटमेंट लिखूंगा मैं. लेट ओके, सिंस the two blocks collide and stick to each other, hence their final velocities VA is equal to VB is equal to x मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी. ठीक है, बट कितनी होगी, तो इसके लिए सो बाय
the principle of conservation of momentum, by the principle of conservation of momentum, total initial momentum is equal to total final momentum. Total initial momentum is equal to total final momentum. So total initial momentum क्या होगा? MA UA plus MAMB UB. Total final momentum अभी. Finally, these two blocks stick to each other. ठीक है? And when they stick to each other, their mass will be considered as 1, MA plus MB, and they will have a common velocity, that is x. So MAUA is how much? 2 into 10 plus MBUB is 10 into 2 is equal to MA plus MB is 2 plus 10 multiplied by x. 20 plus 20 is equal to 12x. So 40 by 12 is equal to x. So x is equal to, oh, again I'm making a mistake. यहाँ पे minus linear में velocity. Minus linear velocity. So this will be minus 20. Oh my God. So what is going to happen over here? 0 divided by 12 is equal to x. And 0 divided by anything is 0. So x is equal to 0 meter per second. What do you mean by that? Their final velocity of the two blocks when they stick after colliding will become 0. They will just remain stuck to each other. They will not move in any direction after colliding. Let's check the answer. 0. Yes, 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 yes. ठीक है. So that is it. यहाँ पे एक impulse नाम का छोटा topic दिया, but that's not in your syllabus, so I'm not going to go there. Okay. So final velocity is 0 and the chapter is over. ठीक है. So we have finally completed physics chapter 2 laws of motion, and I hope you understood this chapter well. There are so many concepts which are taught here, इसलिए मैं ये पहले सिखाना चाहता था. अब मैं chemistry chapter 2 पे आराम से जा सकता हूँ because it's not a big deal. Now since physics is over, that we can work on this chapter in detail. Okay, so see you in the next class. Bye bye.